Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يوم تمور السماء مورا، جس دن کی آسمان کپ کپا کر پھٹ جائے گا اور پہاڑ چلتے ہوئے دکھائی پڑے گا، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے جو باتیں بناتے ہوئے کھیلتے رہتے، جس دن کے جہنم کی آگ کی طرف انہیں بری طرح سے دھکیل دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے؟ اس میں جلو، اب چاہے تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہارے لیے، تمہیں تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ طور کی ابتدائی آیات ہیں۔ کل درس میں جن آیات کا ذکر ہوا اس میں 5 آیتیں جو ہوئی تھی جن میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی تھی، طور کی قسم کھائی تھی، لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی تھی جو کھلے ہوئے اوراق میں موجود ہے، بیت معمور کی قسم کھائی تھی، اونچی چھت کی قسم کھائی تھی، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم کھائی تھی۔ یہ سب طور پہاڑ اور آسمانی کتابیں وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عصمت بخشی، اور بیت معمور آسمان میں وہ کعبہ ہے جس کا نام صراح یا بیت معمور ہے، بالکل دنیا کی اس کعبے کے سیدھ میں ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار آتے ہیں وہ دوبارہ کبھی۔ پھر اونچی چھت کی قسم کھائی، اونچی چھت سے مراد یہ آسمان بھی ہو سکتا ہے، اونچی چھت سے مراد عرش الہی جو جنت کی چھت ہے وہ بھی ہو سکتی، بہرحال مختلف اعتبار سے اس کا مفہوم بیان کیا۔ سمندر جو ابلتا ہوا ہو، یا یہ کہ سمندر جس میں پانی بالکل کھول کر ابل گیا ہو، گرم ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کے اندر کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان سب کی قسم کھا کر فرمایا تھا کہ عذاب تمہارے رب کا آ کر رہے گا، کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ یہاں تک ذکر ہوا تھا کل کے درس میں، اب اسی کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے کہ یہ جو اللہ کا عذاب آئے گا، جو قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اور کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا ہے، دور نہیں کر سکتا ہے، وہ کب ہوگا؟
अल्लाह ने फरमाया कि वो उस दिन होगा जिस दिन की आसमान कपकपा उठेंगे, लरज उठेंगे और उसके बाद वो फट जाएंगे। दूसरी आयतों में इसकी तरफ इशारा भी है, इज़ा समाउ शक़्क़त, जिस दिन की आसमान क्या हो जाएगा, फट जाएगा। कहीं पर कहा इज़ा समाउ फ़तरत, जिस दिन की आसमान क्या है, फट जाएगा, बिखर जाएगा। वइज़ा नुजूम इंतसरत, कभी क्या कहा कि जिस दिन की सितारे जो हैं ये बिल्कुल बिखर जाएंगे, अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। कहीं पर कहा इधर शम्स कुव्विरत, जबकि सूरज बेनूर हो जाएगा, जिसकी रोशनी हमको दिखाई पड़ रही है क्या हो जाएगा, बेनूर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। उस दिन ये पहाड़ जो जमीन में पेवस्त हैं और जमे हुए हैं, उस दिन ये ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे कि रुई के गाले हमारे सामने उड़ते हुए दिखाई पड़े। तो आसमान पर भी लर्ज़त होगा, वो कपकपा रहा होगा, वो फट जाएगा और जमीन भी बिल्कुल से हिल जाएगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला, जमीन भी बिल्कुल से झिझोड़ दी जाएगी। तो ये पहाड़ बिल्कुल अलग हो जाएंगे और ऐसे उड़ते फिरे दिखाई पड़ेंगे जैसे कि रुई के गाले हमारे सामने उड़ते हुए दिखाई। उस दिन यह अज़ाब, तो अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन उन लोगों के लिए बर्बादी है जिन्होंने झुटलाया है, जो अल्लाह के नबी को झुटलाते हैं, जो अल्लाह की किताब को झुटलाते हैं, जो आखिरत के दिन को झुटलाते हैं, जो आखिरत के आज़ाब को झुटलाते हैं, वगैरह वगैरह। उन लोगों के लिए फिर बर्बादी ही बर्बादी है। क्यों? इसलिए कि वो खेल कूद में पड़े हुए हैं और वो बातें बनाते हैं, मजाक करते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं, और उस इस्तेहज़ा में जो उनके अल्फाज होते हैं वो नबी के साथ इस्तेहज़ा, नबी के साथ मजाक, नबी के शान में गुस्ताखी वगैरह वगैरह, नबी के साथ वो हंसी हसारत, वो सारी चीज़ें उसमें दाखिल है कि वो अल्लज़ीना फ़ी ख़ौज़ यलअबून, जो अपने बातों में जो है वो खेल करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब आखिरत का दिन कायम हो जाएगा तो उस दिन ये होगा कि ये सारे जहन्नमियों को बुरी तरह से धकेला जाएगा, इनको धक्के दे देकर जहन्नम की तरफ लाया जाएगा, जहन्नम के आग के सामने इनको खड़ा किया जाएगा, फरिश्ते इनको कोड़े बरसाते हुए, मारते हुए, धक्के देते हुए इनको लाकर जहन्नम के सामने खड़ा करेंगे। उसके बाद फिर इनसे कहा जाएगा ये देखो आग है, ये जहन्नम की आग है जिसको तुम झुटलाया और कहा करते थे कहाँ है वो अजाब, कहाँ है वो आग, लाओ दिखाओ अगर तुम नबी हो, अगर सच्चे नबी हो। हमने तो अपने आबा अजदाद में से आज तक किसी को मरने के बाद उठता हुआ नहीं देखा, तो हम लोग मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो आप कह रहे हो कि कयामत वाक़ होगी, कब होगी, लाके हमको दिखाओ। तो जब कयामत वाक़ हो जाएगी तो उस वक्त कहा जाएगा हाज़िही नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, लो कयामत भी आ गई है जिसको तुम झुटलाते थे, और वो अजाब जहन्नम का अजाब, जहन्नम की आग भी अब तुम्हारे सामने जिसको तुम झुटलाया करते थे। अब ये बताओ, उस वक्त तो तुम नबी से कहते थे कि ये जादू है, नबी की बात को कहते थे कि जादू है, नबी जो कलाम सुनाते तो उसे तुम कहते थे जादू है, नबी को तुम कहते कि ये जादूगर है वगैरह वगैरह। या ये कि तुम ये कहते थे कि इन्होंने मेरे ऊपर नज़रबंदी कर दी है, नज़रबंद कर दिया है, जिसकी वजह से आगे हमको कोई चीज़ सुझाई नहीं पड़ रही है, बस वही चीज़ नज़र आ रही है जो हमको वो दिखाना चाहते हैं। जादूगर जब खेल दिखा रहे होते हैं तो कहते हैं कि वो ऐसा नज़रबंद कर देता है कि बस हमको वही चीज़ नज़र आती है जो हमको वो दिखाना चाहता है, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब आखिरत कायम हो जाएगी और जहन्नम इनके सामने आ जाएगी तब इनसे पूछा जाएगा देखो ये वाक़तन वही जादू है जो तुम्हारे ऊपर किया गया था, वही नज़रबंदी है जिसकी वजह से तुम्हें कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा था, या हकीकत में ये आग है जिसमें अब तुमको जलना है। अब जरा देख लो, गौर से देख लो, क्योंकि आग तुम्हारे सामने है और तुम उसमें धकेले जाने वाले हो। अब देख लो ये झूठ है, जादू है, या वो सच है जिसको तुम झुटलाया करते थे। उसके बाद हुक्म होगा इस्लाउ, हाँ समझ में आए ना आए, अब जाओ जहन्नम में जलो, जलते रहो। फस्बिरु औ ला तस्बिरु, अब वहां पर चाहे तुम चीखो चिल्लाओ
दुहाइयाँ दो, अपने माबूदों को पुकारो, मदद करने वालों को बुलाओ और सबकी दुहाई देते रहो। चाहे तुम ये करो, वावेला करो, और चाहे तुम सोचो कि अब तो सजा मिल ही गई है, हम चीखेंगे तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, चुप हो जाओ, बर्दाश्त करने लगो। तो चाहे तुम सब्र करना चाहो या सब्र ना कर पाओ, दोनों सूरतों में तुमको अब यहाँ पर जलना ही जलना है, और वहां पर किसी भी पल किसी को चैन नहीं होगा। उस आग में जब वो जलेंगे तो ये सोचेंगे कि अब तो हमको जलना ही जलना है, लो अब सब्र कर लें, कोई तो मदद आएगी नहीं, सब्र ही कर लें, तो वो सब्र भी नहीं कर पाएंगे, सब्र भी नहीं कर पाएंगे, और चीखेंगे तो उनकी चीखें कोई सुनने वाला, बल्कि जहन्नम की आग जब जलेगी उसकी लौ के साथ ये बसा औकात बिल्कुल ऊपर तक आ जाएंगे, बिल्कुल ऊपर तक आ जाएंगे। जैसे कि घास फूस जब जलती है तो आप देखें कि उसके लौ के साथ वो घास फूस ऊपर तक पहुंचती है, उसके बाद या तो बाहर गिर जाती है या फिर उसी में नीचे चली जाती है। तो ऐसे ये उड़ते हुए ऊपर तक आएंगे, मुंह दहाने तक जहन्नम के। उसके बाद ये सोचेंगे कि ला जल्दी से आप पकड़ लें मुडेर और निकल जाए बाहर, धड़क से नीचे आ जाए, फिर नीचे आ जाए, तो इनकी सुनने वाला नहीं होगा। और जो फरिश्ते वहां पर आजाब के लिए मुसल्लत होंगे वो न देख रहे होंगे न वो सुन रहे हैं, उनका काम सिर्फ सजा देना। जब आदमी देखेगा तो भी तरस आएगा, जब सुनेगा तब भी तरस आ सकता है। तो न वो देखेंगे न वो सुनेंगे, बस उनका एक काम है कि बस मशीन की तरह, जैसे होता है ना कि एक कंप्यूटर के जरिए मशीन फिट कर दीजिए, चाहे वो हथौड़ा फिट कर दीजिए या जो चीज भी आप फिट कर दीजिए, उसका काम है खट 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 करते रहना। अब जो चीज तुम उसके सामने लगाना चाहो लगाओ, न लगाना चाहो न लगाओ, उसका काम है अपना काम करते रहना। ऐसे ही उन फरिश्तों को गश्त देकर, गुर्ज देकर मुसल्लत कर दिया जाएगा, वो सर पर मारते रहेंगे, सर बिखर जाएगा, फिर जमा हो जाएगा, फिर वो मारते रहेंगे, इसी तरह उनका अज़ाब होता रहेगा। वो क्या बोलते हैं कि अजदहे उनको नोचते रहेंगे, वो खाते रहेंगे। ये नहीं कि उन्होंने बोटी नोच ली तो वहां से बोटी खत्म हो गई तो दोबारा नहीं पैदा होगी, वहां पर दोबारा बोटी लग जाएगी, आपकी खाल जल जाएगी, दोबारा नई खाल पैदा हो जाएगी। क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट ने, डॉक्टरों ने कहा कि जब खाल एक बार जल जाती है तो वो मुर्दा हो जाती है, उसमें चाहे सुई चुभ हो जाए या उसको दोबारा जला दिया जाए तो उसमें कोई तपिश, कोई जलन, कोई तकलीफ नहीं होती। तो आखिरत में अगर किसी को जलाया जाएगा तो एक मरतबे जब उसके खाल जल जाएंगे तब चाहे जितना जला बराबर है। तो जहन्नम का अजाब जो है, उसकी जो आग है वो एक बार असर करेगी, फिर हमेशा थोड़ी असर करेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके इस सवाल उठाने से पहले ही 1400 साल पहले जवाब दे दिया, और हर कौम को उसने दिया, हर दौर में उसने दिया। वो क्या, जब एक खाल जल जाएगी ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जगह पर नए सिरे से दूसरी खाल पैदा करेगी, वो बिल्कुल उसी तरह जिंदा होगी जैसे आपकी ये खाल जिंदा है, फिर उसकी तकलीफ का मजा फिर चलना पड़ेगा, और ये काम सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारी अतलियां उधड़ जाएंगी, आपने गर्म पानी पिया और अतलियां जो गल जाएंगी, ऐसा मतलब नहीं कि मतलब गल गई तो खत्म हो गई, फिर तुम्हारी अतली बन जाएगी, फिर तुमको वैसे अजाब वगैरह वगैरह। कोई भी अजाब में कोई चीज खत्म नहीं होगी, एक चीज खत्म होगी दोबारा फिर अल्लाह पैदा करेगा, फिर वैसी असियत महसूस होगी, वही तकलीफ महसूस होगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि बताओ जादू है या नहीं, सुझाई पड़ रहा है या नहीं, चलो इसमें सब्र करो या ना करो, अब बराबर है तुम्हारे लिए, तुम जो कुछ किया करते थे उसका बदला तुमको मिलकर रहेगा, और ये तुम्हें बदला मिल रहा, पूरा पूरा बदला मिलेगा, उसमें कोई कमी बेशी। इसके बाद फिर जन्नतियों का जिक्र अब किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमाए और जन्नतियों में दाखिल नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।